in 2005, where he visited Stanford University. So this is one of the point from the whole speech, and the point is encounter to death. Effect to that, the tendency of human mind to perceive a specific, often meaningful image in a random or ambiguous visual pattern. कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी ऐसे रील्स भी आती है कि एक फिश है, उसमें ह्यूमन फेस दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे अलग तरीके की फिश आ गई ह्यूमन, तो वो कुछ होता नहीं है, पर हमारा माइंड ऐसा परसीव कर लेता है कि हाँ भाई ये कोई ह्यूमन फेस ही होगा. My name is Nidhi Agrawal, and here I tell you an anecdote on Colonel J.S. Sen. Once in a time, there is a lady and a boy. They came near to the Mahatma Gandhi, and the lady said to the Mahatma Gandhi that tell my son to not to eat sugar because sugar is very harmful for him. My name is Dev Malik. Today I am here to represent an anecdote on Mr. Gautam Adani. One day while returning, a storm came and he got lost in that desert. He was thirsty as well, so he started searching for the water. At a long distance, he saw some water. He thought it was a formation of an oasis. Everyone, I am here to tell you an anecdote about the story of Theodore Roosevelt. He was the 26th President of United States. डिसाइड किया कि वो खेलेंगे. उनको पता था कि उनकी टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. द नेक्स्ट मॉर्निंग वो खेले, उन्होंने 90 रन्स बनाए. उनकी टीम के लिए वो रन्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे. I Chirag Singhal, today going to present an anecdote on Anand Mahindra. अमिताभ बच्चन, एक ये बात है उनकी फिल्म की शूटिंग की जिसमें एक स्टंट था जिसपे उन्हें चलती हुई कार से एक रनिंग ट्रेन पे, बहुत स्पीडिंग ट्रेन पे उन्हें जंप करना था. उन्होंने सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए भी डायरेक्टर को, पूरे अपने क्रू को मना कर दिया था कि मैं अपने स्टंट डबल से ये रोल नहीं कराऊंगा, मैं ये खुद करूंगा. तो सबको पता था कि कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता है उनके साथ में, बट उन्होंने फिर भी वो स्टंट किया. I am here with an anecdote of Miss Shraddha Kapoor, a famous Bollywood personality. Do all we know what is 9/11? One of the greatest accident in our world history. It's a story of a man called Bell Strouder. I am honored to present about Mr. Anuj Sood, Major Anuj Sood. Good afternoon everyone. मेरी आज की स्टोरी है अरुणाचलम मुरुगनाथम के बारे में, जिनको इंडिया का मेंस्ट्रुअल मैन बोला जाता है. उन्होंने अपनी जर्नी लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाने की तब चालू करी जब उनको पता चला कि उनकी वाइफ अनहाइजीनिक ऑल्टरनेटिव्स यूज करती है. रहता है कि जब भी कोई आर्मी ऑफिसर चीन और सिक्किम के बॉर्डर पे जो रेजिमेंट है वहाँ पर उनका मंदिर भी है, जब भी कोई आर्मी ऑफिसर वहाँ ड्यूटी के समय लापरवाही करता है या समय के बाद उठता है या समय से पहले सो जाता है, तो उन्हें वहाँ पर, तो उसे वहाँ पर एक लाफा पड़ता है. और जब भी सिक्किम के बॉर्डर पर चीन और चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में कोई बातें होती है, तो वहाँ पर चीन के जो सिपाही हैं वो भी उनके लिए एक सीट रिजर्व करके रखते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर, ताकि वो वहाँ पे बैठ सके. और आज उन्हें रिटायर कर दिया है, लेकिन पहले कुछ समय पहले तक उन्हें उनकी सैलरी दी जाती थी, उन्हें छुट्टी भी दी जाती थी, और लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी और वहाँ पर वो लगातार ड्यूटी करते रहते हैं. I am going to share an anecdote of Bismarck. So, Good morning everyone. I am Anshika Sethi, and today I am going to present an anecdote on Tom Cruise. Tom Cruise performed a biggest stunt on the cinema history, and before performing that stunt, he says you have to be razor sharp for something like that. And the stunt was performed in Norway at a hill, and the stunt was motorcycle jump off a cliff. The height of the cliff was 4,126 feet. Good morning, ladies and gentlemen. Today I am here to present an anecdote on the most famous personality, APJ Abdul Kalam, also known as Missile Man of India. Good morning everyone, my name is Rimzim Sethi. Here is an anecdote related to Albert Einstein. Everyone, today I am here to discuss about the most Indian valuable cricket player and whose jersey number is 18. Any guesses who is?
In 1930, Mahatma Gandhi started a salt march to protest the British monopoly on salt production and sales in India. Sachin Tendulkar. As we all know, Sachin Tendulkar is often referred as a master blaster. He is a former Indian cricketer, one of the greatest batsmen in the sports of history. He was born on 24th April 1973. He was debut on Indian national team at age of 16. Here is an anecdote about सचिन तेंदुलकर. 1998 में टूर्नामेंट हुआ था शारजा कप करके, उसमें उनको सीरियस इंजरी हो गई थी बैक पेन करके. बैक पेन इंजरी होने के बाद उन्होंने टूर्नामेंट बहुत शानदार इनिंग्स खेली. इन द फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल हुआ था, उनको बैक पेन हुआ था. उनके उसी मैच में 2 से 3 रन भी आए थे. उसके बावजूद उन्होंने सेंचुरी करी और इंडिया को जिताया. इससे यही है कि उनकी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन में गेम को लेकर अच्छे समय भी ऐसे होना चाहिए. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ट्राइबल कमांडर इन चीफ है. वो उड़ीसा की मधुबन डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव ऊपर पेड़ा की रहने वाली है. उनका स्कूल वो प्राइमरी एजुकेशन करी है गवर्नमेंट स्कूल से करी है, जो स्कूल की हालत भी बहुत खराब थी. उसका पेंट बिल्कुल उतरा हुआ था और जो फर्नीचर थे उसके बिल्कुल खराब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां से एजुकेशन करी है. एंड जो वो लेसन विच वी कुड लर्न फ्रॉम दिस इज दैट कुछ सैक्रिफाइसेस कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत छोटे से है, बट उनके लिए वो उनका सब कुछ हो सकते हैं. तो ऐसे लोगों को और उनके सैक्रिफाइसेस को जो हमारी जर्नी में हमें सपोर्ट करते हैं, हमें वैल्यू करना चाहिए. थैंक यू. Whatever happens, happen for a great cause, and what you are doing, you do it great. That will show your character to the people around you. Thank you. बटरफ्लाई इफेक्ट है जिसके अंदर ये होता है. सो एक बिजनेस वर्ल्ड में भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे डिसीजंस, छोटी छोटी चीजें, आदतें बहुत फर्क करती है. सो दिस बटरफ्लाई इफेक्ट. नाउ इससे एक लर्निंग सिर्फ यही मिलती है कि लूजर्स के पास हजारों एक्सक्यूज हो सकते हैं किसी काम को ना करने के, लेकिन जो विनर होता है ना, सिर्फ उसके पास एक रीजन होता है कि मुझे आगे कैसे निकलना है. शायद हम सबको भी उस स्टोरी से सीखना चाहिए. थैंक यू सो मच. Involving a famous Indian singer Lata Mangeshkar, often referred to as the Nightingale of India, यानी भारत की कोकिला के रूप में उन्हें यही मॉडल मिलता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो आर मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता, कोई सर्कमस्टांस मैटर नहीं करता. अगर हमें कोई काम कंप्लीट करना है तो करना है. थैंक यू. जो गोल है तुम्हारा वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है अगर तुम एक प्रॉपर पाथ पे चलोगे तो. थैंक यू. This is Sapna Kumari. Today I am standing in front of you to present an anecdote about Nelson Mandela. So first understand who is Nelson Mandela. Nelson Mandela is an active politician of South Africa. He also became president in 1994. He was the first black head of the country who became the president. So this anecdote is about Nelson Mandela's attitude toward the prison guard when he was in imprisonment for 27 years. Good morning everyone. Myself Pankaj Kumar and I am here to tell a short story of Mr. Gautam Adani. He was born in 1962 in a poor family of Ahmedabad. मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब हमें जो हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, जितने भी रिलेटिव्स वगैरह, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और हमें अपना काम करते रहना चाहिए. और लाइफ में सब कुछ ऐसे बेटर हो जाता है, बस हमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत होती है और थोड़ा धैर्य रखो वगैरह, तो उससे सब कुछ बेटर हो जाता है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. टुडे आई जयेश एक रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ. एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट क्रिकेट कैप्टन, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माई सेल्फ आर्जन सिंह. सो मैं आज एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा हमारे अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर का. Today I present anecdote of famous personality of Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Here I, Rashi Jain, to tell an anecdote of Mother Teresa. She is known for her selfless attitude towards needy. Myself Krish and I am here, and today I am here to present an anecdote on J.K. Rowling. J.K. Rowling is Joanne Catherine Rowling. So she was the author of the famous novel Harry Potter. So the lesson from this anecdote is that the faith and devotion in the right principles can protect ourselves from the adversities, and it also teaches the lesson of environment conservation and also helps in recognizing the nature. His legacy as a beloved figure and a role model for generations in India and beyond. Thank you.
गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम गोविंद और आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको बताऊँ।